درجہ چہارم فیسکو ملازمین کے لیے اچھی خبر۔ سرکل آفیسرز نے درجہ چہارم ملازمین کا ڈیٹا فیسکو ہیڈ کوارٹر کو فراہم کر دیا۔ ملازمین کو مدت ملازمت اور کارکردگی کی بنیاد پر ترقیاں دی جائیں گی۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے اویس علی جی۔ اویس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو میں درجہ چہارم کے ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے کمپنی کے تمام سرکلز کے سپرنٹینڈنگ انجینئر سے جو ہے وہ درجہ چہارم کے جو ملازمین ہیں ان کی دستاویزات جو ہیں وہ طلب کی گئی تھی تاکہ جو ہے وہ ملازمین کو ترقیاں دی جا سکیں۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کے پانچوں سرکلز کے سپرنٹینڈنگ انجینئرز اور دیگر افسران کی جانب سے جو ہے وہ درجہ چہارم کے ملازمین کی جو تمام تر ڈیٹا ہے وہ فیسکو ہیڈ کوارٹر کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ملازمین کی مدت ملازمت، ان کا جو تجربہ ہے اور کارکردگی کی جو ہے وہ چھان بین کی جائے گی، اور اس کے بعد جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں ان کو ترقیاں دی جائیں گی۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ فیسکو چیف کی ہدایت پر تمام سرکلز کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ درجہ چہارم کے ملازمین کا جو ریکارڈ ہے وہ فراہم کیا جائے تاکہ ملازمین کو ان کے تجربہ اور ان کی جو ہے وہ مدت ملازمت اور کارکردگی کی بنیاد پر جو ترقیاں ہیں وہ دی جائیں۔ اسی حوالے سے تمام درجہ چہارم کے ملازمین کا جو ڈیٹا ہے وہ مل چکا ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ فیسکو کے اعلیٰ افسران کی جانب سے نظر ثانی کی جائے گی، اور جو ملازمین جو ہے وہ ترقیاں ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ترقیاں فراہم کی جائیں گی تاکہ فیسکو میں محنت کرنے والے جو ملازمین ہیں ان کو ان کا حق فراہم کیا جا سکے۔ جی بہت شکریہ اویس، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جنگ میں اسموگ کا اندیشہ پیدا ہونے لگا۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 127 پوائنٹ پر موجود۔ ایئر کوالٹی رپورٹ کے مطابق 12 نومبر تک ایئر کوالٹی انڈیکس 182 پوائنٹ تک جانے کا امکان ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے میونسپل کارپوریشن کو صفائی کے علاوہ سڑکوں پر پانی کے چھڑکاؤ کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ تو بالکل، جنگ میں ماہ نومبر کے وسط میں اسموگ کی شدت میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل انڈیکس کے مطابق جنگ میں جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے جو اب 127 کے اوپر موجود ہے، 182 پوائنٹس تک جانے کی توقع کی جا رہی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ اسموگ کی کیفیت جو ہے پیدا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ جنگ میں ماہر موسمیات کی جانب سے بھی صورتحال میں جو ہے وہ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اسموگ کی ممکنہ خطرے کے پیش نظر اقدامات کرنے کے بارے میں جو ہے وہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے میونسپل کارپوریشن کو صفائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سڑکوں پہ متواتر جو ہے وہ چھڑکاؤ کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں تاکہ اسموگ کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ اس سے اگر بات کی جائے، اس کے علاوہ جو ہے محکمہ زراعت کی جانب سے بھی جو ہے وہ اسموگ کی ممکنہ خطرے کے پیش نظر جو ہے وہ دھان کی باقیات اور دیگر جو فصلات کو آگ لگانے سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، جس کے لیے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ 2 مقدمات بھی جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں محکمہ زراعت کی جانب سے کاشتکاروں کے خلاف جو ہے۔ اس حوالے سے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی کار پولنگ کے حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ زیادہ گاڑیوں کو استعمال کرنے کی بجائے جو ہے وہ ایک ہی گاڑی میں جو ہے وہ متعدد افسران کو جو سفر کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے تاکہ ٹریفک کے بہاؤ میں کمی لائی جا سکے۔ اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے دھواں پیدا کرنے والی گاڑیاں اور تمام جو ٹریفک ہے اس کے خلاف بھی جو کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ ضلع بھر میں جو ہے اسموگ کی شدت سے بچا جا سکے اور اسموگ کی کیفیت پر قابو پایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو کی جانب سے جو ہے میونسپل کارپوریشن کو، محکمہ ماحولیات اور محکمہ تعلیم سمیت جو ہے دیگر ضلعی محکموں کو صورتحال بارے جو ہے وہ اقدامات کرنے کی سختی سے ہدایت جاری کی گئی۔ بہت شکریہ اویس خان، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد کاٹن ویسٹ فیکٹری ایریا میں کام کرنے والے تاجر بھی اپنے مسائل لیے سامنے آ گئے ہیں۔ سیلز ٹیکس فکس کرنے کا مطالبہ، حکومت سے 0 ریٹس بحالی کی درخواست بھی سامنے آ گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبد الرحمان سے۔ جی رحمان، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कॉटन वेस्ट फैक्ट्री एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर कैबिनेट भी बैठी हुई है, मीटिंग चल रही है और अपने मसाइल ज़ेर बहस आ रहे हैं। सदर कॉटन वेस्ट फैक्ट्री एरिया रेहान इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किन मसाइल का यहाँ पर कारोबार करने वाले अफराद को सामना है, ताकि उसका हल निकाला जा सके, और हुकूमत के सामने क्या मुतालबात हैं इनके, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो हम इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं इस गवर्नमेंट का, जो ने बिजली के रेट्स कम किए हैं। अगर उन पर अमल हो जाता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा मंद होगा। और इसके अलावा जो सेल टैक्स का मसला है, तकरीबन हर बंदा ही, हर कारोबारी तबका इससे बड़ा नाला है, क्योंकि ये फ़िक्स होना चाहिए 3% 2%। आगे भी हम लोग करते रहे हैं, 17% बहुत ज़्यादा है। इस पर भी इनको गौर करना चाहिए कि इसको कम करके किसी तरीके से ना आप नीचे लो लेवल पे लेके आए ना, फिर इससे ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी और क्या उसे कहते हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो जाएगी सारा। और सेल टैक्स की मद में पैसे भी बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़े हैं, लोगों का रिफंड भी नहीं अभी पूरी तरह हो रहा है। कह देती है गवर्नमेंट, लेकिन पूरी तरह हो नहीं रहे। इसके अलावा हमारे जो मेन इधर जो हमारे अपने ज़ाती जो इशू हैं इस एरिए के, वो इस तरह है कि तो हमारी सड़क बनने वाली है, लाइटें, सीवरेज वगैरह इसका होने वाला दोबारा से बाहर मेन रोड पे, और ट्रैफिक का बहुत गंदा हाल है। ट्रैफिक वार्डन लाजमी टाटा फैक्ट्री में बाहर फैक्ट्री एरिया पे होने चाहिए। एक वो उसकी वजह से एक तो हमारी टाइम यानी कि ना बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है इसमें आने जाने में ही, और क्या उसे कहते हैं बेहिंग और गदा गाड़ियाँ और चिंची रक्शे इस बाहर रोड पे आप देखे ही होगा आपने क्या हालात है। ये मेन हालात इस फैक्ट्री एरिया के हैं कि एक तो सीवरेज का निज़ाम, सड़कें, और ट्रैफिक के लिए वार्डन हमारा यहाँ फैसलाबाद की गवर्नमेंट से अपना एक उनको हम कहते हैं कि ये तो लाजमी ही होना चाहिए। जो इस हवाले से यहाँ पर अपने मसाइल बताए जा रहे थे कि पैदावारी लागत में इजाफा हो जाता है, इसमें कमी लाने के लिए हुकूमत अगर इनकी सुजेशन मानती है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी बरामदात बढ़ाने के काबिल। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सोने की कीमत में फी तोला 400 रुपए कमी, 1 तोला सोना 400 रुपए कमी के बाद 1,15,600 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 100 रुपए में कमी हुई। एक हफ्ता कीमतें मुसलसल बढ़ने के बाद आज सोने की कीमतों में कमी वाक़ हुई है। इसी पर बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा, सोने का कारोबार करने वाले तबके क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, सोने की कीमतों में 400 रुपये आज कमी वाक़या हुई है, जिसके बाद सोने का जो फ़ी तोला रेट है वो 1,15,600 रुपये हो गया है। इसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत में 100 रुपये कमी हुई है, जिसके बाद सोने की जो नई कीमत है 10 ग्राम सोने की कीमत 99,100 रुपये पर आ चुकी है। एक हफ्ते के दौरान आज पहले दिन सोने की कीमत जो है वो कम हुई है, मुसलसल इजाफा सोने की कीमत में हो रहा था, और जिसके बाद जो ख़ास तौर पर सोने का कारोबार करने वाले लोग हैं वो भी परेशान थे कि सोने की कीमतें बढ़ने की वजह से कारोबार जो हैं वो भी मुतासर होते हैं। जाल पर जो मार्केट है सोने की, ख़ास तौर पर यहाँ पर भी जो लोग हैं, शहरी हैं, कम तादाद में रुख कर रहे हैं मार्केट का। राना मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी राना साहब, बताइएगा सोने की कीमत बढ़ने की वजह से कारोबार पर क्या असरात पड़ते हैं, और वजह क्या है कि दिन ब दिन सोने की कीमत बढ़ती जा रही थी, आज क्योंकि कम हुई है कीमत 400 रुपये, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सोने की कीमतें बढ़नी जो है ना, वो तो अगर हमारा रुपया कमज़ोर होता जाएगा तो उससे सोने की कीमतों में भी इफ़ेक्ट होएगा। तो अब कुछ डॉलर कुछ वापस आया है, तो जिस वजह से ये सोने की कीमत भी डाउन हुई है। तो जब सोने की कीमत डाउन होती है तो फिर हमारे कारोबार में इफेक्ट हो जाते हैं। कस्टमर ये कहते हैं कि अभी ठहरें, शायद और सोना कम हो जाए, जिस वजह से हमारा कारोबार मुतासर हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि अगर माशी तौर पर हम मजबूत हो गए तो ये सोने की कीमत और कम हो सकती है। अगर हमारा डॉलर अगर 160 है, अगर 150 पे आ गया, 145 पे आ गया, तो ये हो सकता है लाख रुपए तक हो जाए, 1 लाख से अंदर भी आ सकता है। तो इंशाल्लाह हमें तो उम्मीद है कि अगर माशी तौर पर जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने अगर ये माशी तौर पर हमें एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई है, उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारा ये डॉलर जो है ना वो कम हो जाएगा और रुपया स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कारोबार में बेहतरी आने की कोशिश है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जब मईशत पाकिस्तान की मजबूत होगी, डॉलर की जो कदर है वो कम होगी, रुपए की कदर में इजाफा होगा, तो इससे जो सोने की कीमतें हैं वो भी कम होंगी, जिसके बाद जो शहरी हैं वो भी आसानी से सोना खरीद सकेंगे और जो सुनार हैं उनका कारोबार भी बेहतर तरीके से चल सकेगा। जी बहुत शुक्रिया फजील अहमद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ पंजाब लेबर विंग के सदर मलिक मुनीर अहमद का यहां पर दौरा फैसलाबाद और लेबर विंग की कारकर्दगी, तंजीम साजी समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर हसमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब लेबर विंग के सदर मलिक मोहम्मद मुनीर ने फैसलाबाद का दौरा किया है और इस हवाले से जो लेबर विंग के ओहदेदारान हैं उनकी एक तकरीब का भी अहतमाम किया गया और उनके साथ खिताब भी किया गया। आज के इस फैसलाबाद के दौरे का मकसद क्या है, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ पीटीआई लेबर विंग नॉर्थ पंजाब के सदर मलिक मुनीर साहब मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि आज का ये जो विज़िट है आपका फैसलाबाद का, इसका क्या मकसद है? जी, मैं सबसे पहले मैंने जो विज़िट किया है चिनोट से करके आ रहा हूँ, अभी ज़िला की तंजीम से है, इसके बाद हमारी जो सिटी मेट्रोपॉलिटन की है, और कल मेरा जो दौरा होगा वो जंग का होगा और टोबा टैक्सिंग का होगा। उसके बाद सरगोदा और पिंडी डिवीजन के हमने करने हैं। मेन मकसद इसका ये है कि हमने अपने जितने भी कारकुनान हैं लेबर विंग के, ये जो हुकूमत की तरफ से जो माफिया है, करप्ट माफिया, जिन्होंने एक करप्शन बचाने के लिए तहरीक आगाज़ किया हुआ है, तो उसको हमने काउंटर करना है। और उस काउंटर करने के लिए लेबर विंग जो है हर ज़िले के अंदर लेबर विंग एक कन्वेंशन शुरू कर रही है, जिसका नाम होगा जिसको हम इज़हार यकजहती पाक फ़ौज और इज़हार यकजहती इमरान खान के नाम से ये हम एक मूव जो है लेबर विंग शुरू कर रहे हैं। एक तो इसका मकसद ये है। दूसरा इसका जो मकसद है कि हमारी एक वर्कर यूनियन जो है, क्योंकि ये सनती शहर है, सबसे बड़ा शहर है, तो ये हमारा पॉलिटिकल विंग है। और बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको टोबा लिए चलते हैं, जहां पर कबड्डी मैच जारी है। पाकिस्तान में जरूरी है आज के राणा मौसम के होने में राणा होगा मोरे काला बात बंदे का राणा बाबर या बंदी जाना आए है जेरा अब तक बहादुर का भी चला कौन हो गया सारे दीजिएगा रीड काम वास्ते हाथ लेकर फिर लगाएंगे देखे 40 होने सारे रेड लगाएंगे देखे चलो ये पूरा प्यारा से कैंप लगना ऐसे पहुंचने का नहीं बड़ा टाइम लगा अब होगा माना था देख रहा हमने से पर फूल मारिया होना तो खड़े जाना ये आबुदा मानने जा रहा मन जीवन का साधन दी जाना पोता जीएगा काल है तुम्हारा दादा अब आज दूसरा भी आ गया दूसरे वाला पोता जाने से जमाई कोई जहां नारा सारी चांदे नहीं कहानी जिधर भी जाने में तकलीफ में रहते हैं ये आवाज ने पसरा कहते हैं ये आवाज ने पसरा कहते हैं दाने जाने में मिलता देख रहा आसान हो गया बात बदला ये जान से चालू हो जाएगी तेरे नाम से नाम है रास्ते आजा लो साडे को हुजूर खड़ा है नाम पे जा रहा है तो शराब हर रेट पे लो अगली कबड्डी खेल के लिए है और ताकत आवाज सुनता है ताकत लोगों ने करता तो टूट के पड़ गया हौसला होगा कोई पासे सामने जाता है आज ताला बनाने का बहुत कमाल तो शहर वाले मानना करें दिल दे के सानू खाना करें साडा पापे बेटा सानू पूरी फुल बने तुम्हारे पापे सोता तेरे प्यार दे व्यापार तो जिसका भी ट्राली बने तेरे ना खड़ी किते मेरी दिल तेरे ज्ञानकार तो जिसका भी ट्राली बने तेरे ना खड़ी किते मेरी दिल तेरे ज्ञानकार तो लड़ तेल हमरा जल्दी बोलो तो फिर बना देते खामा जाके कमाल किया तारा दोए पासे नहीं चले काला बाबिया शेर पर और जन्नों का मसला कमाल इस में जन्नों वाले आगे पिछली साल में बड़ा प्यार और मोहब्बत है आप इस टोले जरूर कर दिया ऐसा हुआ है फिर नाम के लोग मेरे पास उसने फिर बाग लखों में कमाना बाबा टोले में गल करिए कभी लगा हुआ आदर गया सुनते समेलना तो लगा हुआ आज लगे उस मैंने बना लगाया ताकि गल करिए मैंने बना लगाया तो उन्होंने कहा पखड़ा सुधार उठा कभी मसीह लगा सीखा कभी अपने लगा सीखी पर सामने से सोचना खड़ा हो गया फिर आज दरवाजा लगा
माहौल ग्राउंड में होना चाहिए अल्लाह ए हाथ कदो हाफिज रियाद छंदा शिर का थोड़ा बाहर दे रहा क्या तुझे सामने के साथी भी अलग है सामने जो है कपड़ू पंजाबी भी अलग है 330 हज़ार कोने का कमाल है ताए के 3 लाख भी अलग है ताए के 3 लाख भी अलग है ऐसे चलिए पुराने के भी आज जो फैसल मेरे साथ तेरा कल 328 कबड्डी क्लब और 322 कबड्डी क्लब की टीमें इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं और जबरदस्त टाकरा जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।